माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो क्लास 9th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। 7 तक हमने कंप्लीट किया है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ABCD is a rectangle. ये जो ABCD quadrilateral ये जो फिगर है, ये गिवन क्या है? It is a rectangle. Given A, B, C, D. This quadrilateral figure is given. ABCD is a rectangle. It is a rectangle. Means each angle is 90 degree. And also it is a parallelogram because every rectangle is a parallelogram. But all parallelograms are not rectangle. ये याद रखना. In which diagonal AC, ये जो diagonal AC bisects angle A, ये diagonal AC ये भी given है. This bisects angle A means अगर I will write here name, it is 1, it is 2, means angle 1 is equal to angle 2 as well as angle C also. This diagonal AC bisects angle C also. I will write here name 3, here 4, means angle 3 is equal to angle 4. It is given. Now we have to show that ABCD is a square. This quadrilateral figure, ये जो rectangle given है, ABCD is a square. Second part, diagonal BD bisects. हमें ये भी प्रूव करना है फिर diagonal BD जो है, this diagonal, I will join this by dotted line also. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ये जो diagonal है, पहले हमें स्क्वायर करना है प्रूव, फिर हमें ये प्रूव करना है कि दिस डायगोनल BD bisects एंगल B as well as एंगल D. पहले हमें ऐसे करना है. ये पहले हम गिवन लिखेंगे जिस तरह हम लिखते हैं. गिवन क्या है? ABCD is a rectangle. ये जो quadrilateral ABCD is a rectangle. What is this? It is a rectangle in which AC, ये जो diagonal AC bisects angle A as well as angle C. That is angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. क्यों? ये भी given है ना. This diagonal AC bisects angle A, means angle 1 is equal to angle 2 as well as angle C, and angle 3 is equal to angle 4. ये हमें given है. इसके बाद to prove जो है, ABCD is a square. ABCD is a square. We have to prove in this rectangle all the four sides are equal, then it is a rectangle. Because it is a rectangle, each angle is 90 degree. In a square there is also each angle 90. Now we have to only prove here each side AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, then it is a square. ABCD is a square. Second part जो है diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ये second part प्रूव करना है. प्रूव ये बिल्कुल इजी है, पूरा ध्यान रखो. आपकी मर्जी है, जिस तरह आप करोगे उस तरह आपको अच्छी तरह आएगा. देखो क्या करना है. मैं अगर यहां पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि मैंने कहा कि ऑल रेक्टेंगल्स
और पैरेललोग्राम। जो भी रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। जो भी रेक्टेंगल होता है ना वो पैरेललोग्राम भी होता है। उसमें वही प्रॉपर्टी सारे जो पैरेललोग्राम में है वो रेक्टेंगल में, मगर ये याद रखना सारे पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल नहीं होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। That's why we can write here angle A is equal to angle C. Angle A is equal to angle C. Opposite angles of a rectangle are equal. Opposite angles of a rectangle are equal. Angle A is equal to angle A is equal to angle C. Angle A is equal to angle C. Opposite angles of a rectangle are equal. If I will write here half of angle A is equal to half of angle C. क्यों? एंगल A is equal to एंगल C, ये दो आपस में बराबर है, तो therefore इसके हाफ जो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, तो हाल्व्स भी इक्वल होंगे। तो अगर इस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, इसका हाफ और इसका हाफ वो भी बराबर होगा। फिर मींस ये जो है ना हाफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका हाफ जो है ना, इसका हाफ 1, इसका हाफ 3, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसे भी मैं कर सकता हूं। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी। वाई? इट इज अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स। मैंने कहा sides opposite to equal angles are equal, then AB is equal to BC. AB is equal to BC. Now when AB is equal to BC, तो इसके अपोजिट साइड्स बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो सारे साइड्स फिर आ गए बराबर, तो हेंस इट इज ए स्क्वायर। अगर आपको ऐसे, अगर आप ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो ऐसे भी हम कर सकते हैं। प्रूफ, हमें यहां पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इट इज गिवन, it is given because diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Name it also first. Name it also first. मैंने कहा कि सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहां पे मैं ऐसे ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल DC, ए बी पैरेलल DC एंड ए ट्रांसवर्सल AC intersects them and a transversal AC intersects them. मैंने लिखा AB parallel DC and a transversal AC intersects them. तो एंगल 1 is equal to एंगल 4, एंगल 1 is equal to एंगल 4। अच्छी तरह देखो, यहां पे मैंने लिखा AB parallel DC and transversal AC intersects them, then therefore angle 1 is equal to angle 4। कैसे? pair of alternate interior angles, pair of alternate interior angles, इसका नाम हम रखेंगे सेकंड। ये जो एंगल 1 is equal to एंगल 4, from first and second we get what? देखो आपकी मर्जी है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। वी कैन राइट हियर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पे भी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 4 के बराबर, तो यहां पे निकलेगा ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? एंगल 1 भी 4 के बराबर, एंगल 3 भी 4 के बराबर। एंड अगर मैं यहां पे ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल
4, क्योंकि एंगल 2 भी एंगल 1 के बराबर है, एंगल 4 भी एंगल 1 के बराबर। मैंने अभी निकाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि हाफ ऑफ व्हेन ए इज इक्वल टू सी, हाफ ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो मैंने अभी इसी तरह ये भी निकला, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये आपकी मर्जी है जिस तरह आप करोगे। देखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ABC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वी प्रूव दिस। चाहे आप ये भी उठा सकते हैं, इन ट्रायंगल ADC, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वो भी मैंने निकाला। चाहे आपकी मर्जी है, मैंने अब उठाया ABC ट्रायंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो क्या गए, देयरफॉर AB this AB is equal to BC। पूरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC। कैसे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मैंने ये कहा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। निकला हमें AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। तो इसमें क्या निकलेगा, अगर मैं इन ट्रायंगल ADC, इसमें निकलेगा AD इज इक्वल टू BC। तो अपोजिट साइड्स, ये पैरेललोग्राम भी है, अपोजिट साइड्स आर equal in a parallelogram or in a rectangle also, then all sides, adjacent sides are equal। क्योंकि यहां पे जब निकलेगा ना, ये याद रखना, जब पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल निकलते हैं ना, तो इसका मतलब है सारी साइड्स आपस में बराबर है। Therefore in a rectangle ABCD, एडजेसेंट साइड्स AB एडजेसेंट टू BC है ना, या BC एडजेसेंट टू AB, इसी तरह यहां पे भी AD एडजेसेंट टू DC। इन ए रेक्टेंगल ABCD एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इन ए रेक्टेंगल ABCD एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट मीन्स जो एक साथ होते हैं, AB एडजेसेंट टू BC है ना। जब एडजेसेंट साइड्स बराबर है तो यहां पे थोड़ा मैं इरेज, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर। AB, ये आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखो AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। मुझे निकला AB इज इक्वल टू BC। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड। AB इज इक्वल टू BC, ये पूरा ध्यान रखो। ये मुझे निकला AB इज इक्वल टू BC। AB किसके बराबर है, पहले देखो, AB इज इक्वल टू DC है ना। यहां पे ये जो AB है ना, वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। ये जो BC है ना, वो किसके बराबर है, AD के बराबर। तो निकला देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD। हेंस ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, देन इट इज ए स्क्वायर। क्यों ये स्क्वायर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल गिवन है, इसी वजह से मैंने लिखा इन रेक्टेंगल ABCD एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन ABCD इज ए स्क्वायर। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। हो गया ये पहला पार्ट, ABCD इज ए स्क्वायर। अब हमें जो ये सेकंड पार्ट दिखाना है, एक मिनट में थोड़ा देखो, सेकंड पार्ट जो है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज angle D. It is simple. In a square, diagonals bisects opposite angles.
डायगोनल्स बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे ये जो डायगोनल AC है ना, इसने अपोजिट एंगल्स जो है A एंड C इनको बाइसेक्ट किया, इनको क्या किया, बाइसेक्ट। इसी तरह यहाँ पे इन ए स्क्वायर डायगोनल्स bisects opposite angles, therefore diagonal BD bisects angle B as well as angle D। बस इतना ही लिखना है, इसमें प्रूव करने की, अगर हम प्रूव भी करेंगे ये निकलेगा जिस तरह मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन दिखाया, मगर यहां पे ऐसे सिंपल लिखना है। इन ए स्क्वायर डायगोनल्स bisects opposite angles, therefore diagonal BD bisects angle B as well as angle D। hence proved। इतना ही इसमें लिखना है, मगर ये पता होना चाहिए क्योंकि इसने AC लिखा है, वो बाइसेक्ट एंगल A और एंगल C को करता है। इसी तरह ये जो दूसरी डायगोनल BD, ये एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। hence proved। that's all। now tomorrow इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 होगा। थैंक्स।